Gursimran? 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 Where is Swati ma'am? Huh? Please call her and ask her to come immediately. स्टार्ट करें प्रोग्राम स्टार्ट करो All right. Good afternoon, all of you. We are sorry. We apologize. We are running a little late. Anyway, it is my great honor to welcome Swami Sarvalokanandaji today at Amity University. Swamiji is a senior monk of the Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission and is currently in charge of the Ramakrishna Mission, New Delhi. Swamiji represents the eternal values that guide the work of the mission, which, ever since its establishment in 1897 at Belur, West Bengal, is striving to spread globally the message of peace, harmony, friendship, brotherhood, and universal tolerance and acceptance. In a world riddled with sectarianism, Ramakrishna's message, Joto Math, Toto Path, which can be roughly translated as many opinion, that many ways, inspire us to rise above hatred and see divine manifestation in all. Swami Sarvalokanandaji, in his years of service to the mission, in different capacities, ranging from his years in the medical service of the Ramakrishna Mission Hospital, in managing the Ramakrishna Mission in Mumbai, and in serving as head of Ramakrishna Mission Ashram, Narendrapur, Kolkata, have tried to spread the teachings of Ramakrishna and Vivekananda. In inviting him to speak today on human values, service to society, my sincerest wish has been that our lives would be touched by these cherishable values, and we will strive to put these values into practice to create a kinder world. Thank you. Over to you, Swamiji. Om Asatoma Sadagamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mityorma Amritagamaya Om Shanti Shanti Shanti. O God, lead us from unreal to real. Lead us from darkness to light. Lead us from death to immortality. Om. Peace, peace, peace. At the outset, I must thank Madhumita Madam and others
for inviting me to this prestigious university, that is Amity University. I had the privilege of visiting many units of Amity University in Kolkata, Gwalior, and Gurgaon, and many other units of Amity University. All of you know that the present scenario, not only the scenario of India, but the scenario of the whole world, is passing through a great crisis. Different type of crisis, and main crisis is that there is a tremendous erosion of human values, not only in India but all over the world, because human life, rather the basis of human life, depends on the values. In all philosophies and religion, human being has been held in very high esteem. And by nature, human being has its quality, values, जिसको हम कहते हैं मानवीयता. अगर मानव में मानवीयता नहीं रही, if the humanity is not there in human being, then that person cannot be called human being. It is very rightly said in our scriptures that dharmena hina pasubhi samana. What does it mean? The dharmena hina, without righteousness and without values, in other words, a human being is nothing but animal. Dear friends, you'll find that apparently there is no difference between man and animal. Why? Man also eats, animal also eats. Man take rest, animal also take rest. Man satisfy his biological need, animal also satisfy its biological need. Dear friends, apparently there is no difference between man and animal. Mind this word, I have said apparently. How it can be that there is no difference? Difference is there. There's a basic fundamental difference. And that difference is Viveka Buddhi, Vichara Buddhi. The power of discrimination. No other species on this earth, except human being, is having this Vichara Buddhi, Viveka Buddhi. Only human being can discriminate what is bad and what is good. No other species can do it. There is a power in human being which can elevate farther and farther to a great extent. No species on this earth can do this. So, dear friends, the human values is very important. Just now, Madam was telling, the whole world is riddled with sectarianism, hatred, jealousy, war, all kind of violence. Why? What is the main cause of all such untoward incident, untoward happenings? Dear friends, try to understand.
because there is a erosion of human values. हम मानवीयता को भूल गए हैं. हमारे अंदर जो मानवीय गुण हैं, वो गुण को हम नहीं अपनाते हैं. ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर, मानव के अंदर कुछ ऐसा गुण है, there are certain sterling qualities for which human is called best creation of God. ईश्वर ने तो बहुत कुछ बनाया है इस दुनिया में, इस धरातल में, लेकिन कहा जाता है कि मैन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड. व्हाई? बिकॉज मैन हैज द थिंकिंग पावर. मैन हैज दैट डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, जिसको कहते हैं विवेक बुद्धि विचार बुद्धि. सो डियर फ्रेंड्स, ह्यूमन वैल्यूज. What are the human values? Human values are love, affection, unselfishness, tolerance, so on and so forth. These are the human values. अगर हमारे अंदर ये सब गुण नहीं रहे तो हम जंतु जानवर की तरह हो जाएंगे. इसलिए ये समय आ गया है. The time has come that you have to nurture, you have to culture, you have to practice, you have to develop, you have to manifest that human values. Unselfishness is a great human values. निस्वार्थता, जिसको हिंदी में कहते हैं, हम ये भूल गए हैं. क्या है निस्वार्थता? शेयरिंग एंड केयरिंग. आप सब यहां पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं शायद. स्टूडेंट को तो बहुत अच्छी तरह से एक गुण को अपनाना चाहिए, शेयरिंग एंड केयरिंग विथ योर फेलो स्टूडेंट्स और क्लासमेट. ये बहुत बड़ी बात है. हम देखते हैं कि इंडिया हैज got independence 75 years ago. Now we are observing or celebrating the Azadi Ka Amrit Mahotsav. We're proud of it. But dear friends, you have to think deeply. Within 75 years, India has achieved success in many fields. But 75 years is not a small period. Within these 70 periods, India should have achieved the status of a developed nation, not developing nation, developed nation. But India couldn't do it, couldn't achieve it. Why? That in the masses of India, one thing is very much lacking nowadays, that is called patriotism, deshabhakti, love for country. हम भारत को आगे ले जाना चाहते हैं. हम ये कल्पना करते हैं कि भारतवर्ष एक दिन विश्व गुरु बनेगा, भारतवर्ष दुनिया को राह दिखाएगा. कैसे दिखाएगा? भारतवर्ष की उन्नति कैसी होगी? भारतवर्ष की उन्नति तो तभी संभव है जब हमारे अंदर, हमारे भीतर देशभक्ति रहेगी. Somebody asked, many people used to come to Swami Vivekananda, the great spiritual leader and icon of youth. उन्हें बहुत लोग आते थे, बहुत प्रश्न करते थे. कुछ ऐसे लोगों ने आया स्वामी जी से पूछा, यार स्वामी जी, what we can do for India? स्वामी जी ने कहा, बताया, सुनिए कान खोल के. स्वामी जी ने बताया, स्वामी विवेकानंद जी ने, you want to do something for India? Yes. All right. First, try to love India. Then you can serve India. Otherwise, not possible.
पहले प्रेम करो, प्यार करो अपने मातृभूमि से, तभी तुम देश को आगे ले जा सकते हो, देश की सेवा कर सकते हो। ये स्वामी जी कहते हैं। इसलिए हमारे अंदर पहले जो देशभक्ति थी, कितनी बड़ी देशभक्ति थी। What kind of sense of patriotism in earlier days? This is a classical example is this, that how Indian people could drive away the powerful British emperor. Because in those days, in the freedom fighters, there was a tremendous urge of patriotism, देशभक्ति। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश राज को खदेड़ कर बाहर कर दिया। इसलिए dear friends, nowadays we must have inculcate this type of values in all of us, particularly the youth who are sitting before me. Dear friends, you are the future of our country. Try to understand it and to remember always. आप देश के भविष्य हैं। देश की उन्नति आपके ऊपर निर्भरशील है, ये आप मत भूलिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको डिग्री मिलेगी, आप काम करेंगे, जॉब करेंगे, गुड पे पैकेट मिलेंगे, ये सब होगा, लेकिन आपको देश के लिए भी कुछ करना है। आप प्रश्न करेंगे, अब बेटा क्यों देश के लिए हम करेंगे, क्या जरूरत है? जरूरत है, ज्यादा करके आपको देश के लिए करना है। क्यों करना है? बिकॉज यू आर इंडेटेड टू द कंट्री, टू द सोसाइटी, टू योर पेरेंट्स, to your teachers, to your school, to your college and universities. All are indebted. आप सब ऋणी हैं अपने सोसाइटी से, समाज से, देश से, अपने परिवार से कितना लिया है, how much you have taken, try to understand. और उसके in return you have to do something for the society, for the country. नहीं तो आप जिंदगी भर ऋणी रह जाओगे, you will be in the debt. तो dear friends, इसलिए ह्यूमन वैल्यूज की बहुत ही आवश्यकता है, ह्यूमन वैल्यूज की बहुत ही आवश्यकता है। कैसे हम आदर्श नागरिक बन सकते हैं? We claim that all we are a citizen, but dear friends, you have to become enlightened, ideal citizen. भारतवर्ष के आपको आदर्श नागरिक आपको बनना पड़ेगा। कैसे हम आदर्श नागरिक बन सकते हैं ताकि हम देश की सेवा कर सकते हैं? जब हम सेवा की भावना से सब कुछ कर सकेंगे। स्वामी विवेकानंद has said very rightly, he has said that renunciation and service are the twin ideals of our nation. Try to intensify those two channels. What are those two channels? They are renunciation and service. आप देश की उन्नति करना चाहते हो ना, तो वो ये करना है हमें कि हमें भारतवर्ष को दो रास्तों से ले जाना है। एक है रिनंसिएशन एंड सर्विस, त्याग और सेवा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। त्याग के बिना, सेक्रीफाइस के बिना सेवा नहीं होती है। You have to sacrifice something for the society, for the country, whatever it may be. तभी आप सेवा कर सकते हैं। ये आपको समझने की बात है। इसलिए हमें देश की सेवा करनी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आप चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा छात्र बने, बहुत अच्छा नंबर हमको मिले, इसके लिए भी ह्यूमन वैल्यूज की आवश्यकता है। नहीं तो आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे। थोड़ी देर बढ़ेंगे, ठीक है, हो गया इधर उधर करके, लेकिन हमको सब्जेक्ट दिया गया सस्टेनेबल ग्रोथ और सस्टेनेबल लिविंग। सस्टेनेबल लिविंग के लिए इधर उधर करने से नहीं होगा।
इधर उधर नहीं करने से नहीं होगा। ये जो गुण है, मैं जैसे बताया, मानवीय गुण को अपनाना पड़ेगा। आप प्रश्न कर सकते हैं, हम तो देखते हैं समाज में, हम अगल बगल में देखते हैं, जो सारे लोग डिसऑनेस्ट हैं, वो लोग तो बहुत मजे में है, बहुत रुपया पैसा कमा रहे हैं, बहुत मजे में है। यस, हाउ लॉन्ग, टुडे और टुमारो दे विल पुट बिहाइंड द बार। आप नहीं देख रहे हैं टीवी में, न्यूज़पेपर में घटोला मटोला सटोला स्कैम अमुक तमुक, ऑल काइंड ऑफ रैम्पेंट करप्शंस। लेकिन ये कुछ दिन तक चल सकता है, ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता है। डियर फ्रेंड्स, यू नो द मोनोग्राम ऑफ इंडिया क्या है, बताइए तो देखें। अब तो इसका हिस्ट्री का छात्र हैं, हमारा आशा की स्तंभ है, और क्या है, क्या लिखा है, ये जो हम देखते हैं इंडियन कैमरा में, क्या लिखा है बताइए कोई स्टूडेंट, क्या लिखा है? यस, सत्यमेव जयते। व्हाट डज इट मीन? यस, द ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, नॉट फॉल्सहुड। सत्य की जय होती है, आज नहीं तो कल। कभी कभी हम जाते हैं, बहुत सारे छात्र या छात्रा प्रश्न करते हैं, महाराज अगर हम सत्य के पथ पर चलेंगे तो बहुत कठिनाई होती है, बहुत कुछ करते। यही अगर कोई छात्र ट्रेड द पाथ ऑफ ऑनेस्टी, वो सब मजाक करेंगे, अरे देखो बहुत बड़ा संत बन गया, बहुत बड़ा ये बन गया, मजाक करेंगे। आई नो इट। लेकिन ये जान के रख दीजिए कि सत्य की जय जरूर है। एक हिंदी में एक कहावत है, जानते हैं क्या है? भगवान का घर में तब देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि सत्य के पथ पर चलिए। असुविधा होगी, जरूर असुविधा होगी, लेकिन ये भी जान लीजिए, आपने अभी तो महाभारत रामायण देखा होगा। रामायण को तो कितना बड़ा हो गया, बहुत बड़ा इतिहास बन गया अयोध्या में। महाभारत के बारे में आप जानते हैं? यू मस्ट नो व्हाट इज महाभारत। देयर आर हाउ मेनी एपिक्स इन आवर इंडियन फिलोसफी। हमारे हिंदू रिलीजन में, सनातन धर्म में कितने महाकाव्य हैं? हु विल टेल, बताइए। अरे ये सब पढ़ना चाहिए। टॉपिक्स, व्हाट आर दे? महाभारत। एंड दिस महाभारत, ये हमारे सामने बहुत बड़ा मिसाल है कि कौरव और पांडवों में आप सभी जानते हैं, लड़ाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। और जो पांडव है, ऑलवेज दे ट्रेड अ पाथ ऑफ ऑनेस्टी। वो धर्म के पथ पर उन्होंने चला, इसलिए बहुत असुविधा हुई। कौरवों ने उनको मार डालने के लिए ना जाने कितना कोशिश किया, अत्याचार की, ये किया वो किया, लेकिन आखिर में किसका जय हुआ, विजय? पांडव की। ये तो हमारे सामने बहुत बड़ा मिसाल है, पांडव की जय। पांडवों ने जीता, पांडव वन द वॉर। इसलिए हमें इससे घबराना नहीं है कि हम सत्य पथ पर चलेंगे हमें परेशानी होगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए केवल हमारी परंपरा नहीं, नॉट ओनली आवर ट्रेडिशन, विश्व के ट्रेडिशन में मानवीय मूल्य के ऊपर बहुत ही जोर दिया गया है, बहुत ही जोर दिया गया है। आज कहां गया मानवीयता? बहुत आश्चर्य लगता है, दुख होता है, शर्म लगती है। आप तो लोग तो खूब वायरल करते हैं ये सब फोटो वोटो, ये सब बहुत सोशल मीडिया में। मैंने तो ज्यादा देखता नहीं, मैं तो संत हूं, उतना ज्यादा देखता हूँ जो सुनता हूँ। तो एक यंग लड़का को एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में किनारे पड़ा था, छटपटा रहा था, जस्ट स्ट्रगलिंग, ही मेट एक्सीडेंट, यंग बॉय। और रास्ते से बहुत लोग जा रहे थे, यंग बॉय भी जा रहे थे, गर्ल्स भी जा रहे थे, और दूसरे लोग भी जा रहे थे, ऐसे देख के चले जाते थे। और वो दैट बॉय, ये सुनिए
कि क्या हमारे हम मनुष्य होके क्या कर रहे हैं? पशु के समान हो गए। क्या कहते हैं वो, बचाओ बचाओ बचाओ, प्लीज हेल्प मी, टेक मी द हॉस्पिटल। और क्या किया, आई डोंट टॉक, आपस में बोलने से हमारी असुविधा होती है बोलने में। जब तुम समझोगे, जब तुम यहाँ आओगे और वही को बड़बड़ाएगा वहां, तो तुमको भी लगेगा कितना मुश्किल होती है। ये समझना चाहिए। तो क्या होता है कि सेल्फी खींच रहा है सब, उसके साथ खड़ा होकर एक सेल्फी खींच रहा है। बट कैन यू इमेजिन, कितनी बड़ी दुखद घटना है, मानवीयता के ऊपर कितना बड़ा चोट है कि किसी भी कोई भी लोग उसको उठा के हॉस्पिटल में नहीं ले गया और वो लड़का रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कैन यू इमेजिन, वही लड़का रास्ते में दम तोड़ दिया। यही यही है शिक्षा। हम जो शिक्षा पाते हैं, हम जो शिक्षा पाते हैं, यूनिवर्सिटी में हो, स्कूल में हो, कोई भी यूनिवर्सिटी में हो, यही है शिक्षा का मूल्य, कि हम उसको उठा के हॉस्पिटल में नहीं ले जा सके। वी कुड डू इट, लेकिन हमने नहीं किया। जो हमारे अंदर जो मानवीयता है, ह्यूमैनिटी, उसका हमने विसर्जन दे दिया, उसका हमने विसर्जन दे दिया। ये बहुत दुख होता है। बड़े आम जनता के सामने किसी लड़की को, महिला को छेड़छाड़ किया जाता है, अत्याचार किया जाता है इन द रेलवे, ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म। कोई इसका प्रतिवाद नहीं। इतने हजारों लोग आते हैं जाते हैं, देख रहे हैं तमाशा, कोई भी प्रतिवाद नहीं, नो प्रोटेस्ट। हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य नहीं है। ये मनुष्य की पहचान नहीं है। हम खूब कोट वोट पहन सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो फैशन वगैरह कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग, वी हैव गॉन टू द ब्रूट लेवल्स। सुनने में खराब लगता है, लेकिन ये घटना है। इसलिए हर खास करके हम भारतीय परंपरा को बचाना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं, हमारी सभ्यता और संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं। ये हमारी, अब तो ये क्या फैशन हो गया पता नहीं, बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल, फॉरेन रूल, जो वेस्टर्न कल्चर हमारे ऊपर इतना लागू हो गया है, इतना हावी हो गया है। हाउ मच यूर इन्फ्लुएंस बाय द वेस्टर्न कल्चर। शर्म की बात है। पहले हम लोग क्या कहते, पिताजी को संबोधित करते थे, हाउ विश टू एड्रेस आवर पेरेंट्स, पिताजी, माताजी, और आप क्या, डैडी, मम्मी, हाय, व्हाट इज दिस, दिस आवर कल्चर। अरे यार, हमारे जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता सबसे पुरानी, सबसे, आप तो इतिहास के छात्र हैं, सबसे पुरानी, द रिचेस्ट एंड द ओल्डेस्ट कल्चर लिविंग ऑन दिस अर्थ, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति। और हम उसको छोड़ के पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे हैं। इसलिए हमारी संस्कृति को भी समझना पड़ेगा, सभ्यता को भी समझना पड़ेगा, हमको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। हम पाश्चात्य शिक्षा से, विद्या से हम प्रभावित हैं। इतिहास कहता है, हिस्ट्री सेज, बहुत पहले की बात है, जब हमारे भारतवर्ष में न जाने कितना विद्वान थे, कितना वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे भारतवर्ष में कुछ नहीं, जो कुछ भी है वही है, सब विदेशों में है। अरे, जो मैथमेटिक्स, जिसके ऊपर साइंस टिका हुआ है, उस गणित का जो डिजिट है, किसने आविष्कार किया? तो फ्रांसीसी अमेरिका वालों ने आविष्कार किया। who has invented this zero digit? आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट ने किया। ये हम जानते हैं कि प्लेन बनाया, एरोप्लेन बनाया राइट ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, नहीं, बिल्कुल सरासर झूठ है। नाउ इट इज बीइंग प्रूव्ड दैट वो हवाई जहाज का जो कॉन्सेप्ट किसने बनाया? पढ़िए इतिहास, पढ़िए, इतिहास के छात्र हैं। भरद्वाज मुनि ने बनाया।
वो बहुत बड़ी घटना है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, बट नो इट फॉर सर्टेन दैट हमारे भारतवर्ष में सब कुछ है, जिसको भारतवर्ष किसलिए कहा, क्या कहा जाता है, सोने की चिड़िया। क्यों इसलिए कहा जाता है? इसलिए मत सोचिए कि विदेशों में सब कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। नहीं, हमारे पास सब कुछ है। हमने ये सब कुछ करना छोड़ दिया। हम लोगों ने इसकी चर्चा नहीं की, जिसके कारण हम जो पहले भी अभी भी जो देख रहे हैं, क्या नहीं है हमारे भारतवर्ष में। भारतवर्ष में कुछ दिन पहले सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून, चंद्रयान, उन्होंने दिखा दिया, सारा विश्व को दिखा दिया जो व्हाट आवर इंडियन साइंटिस्ट कैन डू। उसके लिए हमें गर्व अनुभव करना चाहिए कि आवर इंडियन साइंटिस्ट कुड डू इट। डियर फ्रेंड्स, इसलिए मैं कहता हूं कि ये सब कुछ संभव है, और संभव हुआ था बिकॉज अर्लियर डेज the people of India used to nurture culture, practiced the values in life. इसलिए संभव हुआ था, इसलिए संभव हुआ था। इसलिए हमें ये सब जीवन में अपनाना है और जीवन को समृद्ध करना है। आउटवर्डली यू आर वेरी स्ट्रांग, हम देखने में बहुत सुंदर हैं, ये हैं लंबे हैं, तगड़े हैं, ये हैं वो हैं, हमने बहुत पढ़ाई की, मैंने बहुत डिग्री हासिल की, ये सब तो एक्सटर्नल स्ट्रेंथ। डियर फ्रेंड्स, अंदर से खोखला है, कुछ नहीं। There are two kinds of strength, you must understand it. One is external strength and is the internal strength. Externally you are very much empowered, बहुत पढ़ाई लिखाई की, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत कुछ है आपके पास, बट व्हाट अबाउट इंटरनली? क्या अंदर से आप सशक्त हैं? अगर जीवन में कभी मुसीबतें आ जाती है या चैलेंजेस आते हैं या समस्या आती है, तो कभी कभी हम उसका सामना नहीं कर पाते हैं। Sometimes we fail to face the challenges and the problems. और स्कूल कॉलेज में तो आप सभी जानते हैं, रिजल्ट खराब हो गया तो बस इतना ही टूट गया कि बस एकदम बिल्कुल साफ हो गया। क्यों, ऐसा क्यों होगा? ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये तो जीवन, इट इज जर्नी ऑफ लाइफ, दैट सक्सेस एंड फेलियर इट विल कम। क्या आप तो इतने छात्र हैं, सबके जीवन में कभी सफलता है, सफलता है, कभी कभी असफलता भी आती है, इट कम्स एंड गोज। इसलिए हमें जो अंदर से हमको सशक्त होना पड़ेगा। अंदर से सशक्त होने का अर्थ क्या है? अंदर से सशक्त होने का अर्थ क्या है? अंदर का सशक्त होना अर्थ है कि यही वैल्यूज को, मानवीय मूल्यों को विकसित करना है अपने में। Why you respect the big people, the celebrities, intellectuals, it is called political leaders, इसको हम जो बड़े होके गए हैं उसको हम इतना रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? क्यों रिस्पेक्ट करते हैं? रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं, श्रद्धा अभी भी करते हैं, इट इज देयर। श्रद्धा इसलिए करते हैं कि हमारे उसके भीतर, उनके अंदर कुछ ह्यूमन वैल्यूज जो है, वो ह्यूमन वैल्यूज उनके अंदर में विकसित हुआ है। Why you respect Abdul Kalam? Not because of he was president of India, not because he was a space scientist, but in him human values were manifested into a great extent. इसलिए तो देखने में तो ऐसे ही थे। Then why the younger people, they are very much fan of Abdul Kalam, the ex-president of India? Why? क्योंकि उसके अंदर, उसके भीतर वो मानवीय मूल्यों का विकास हुआ था, विकसित हुआ था।
हम विकसित भारत का बहुत नारा सुनते हैं, हम देश निर्माण के नारे सुनते हैं। अरे भाई, पहले अपने को निर्माण करो, तब देश का निर्माण कर सकोगे, नहीं तो नहीं कर सकोगे। पहले अपने को निर्माण करो, तब तुम देश का निर्माण कर सकते हो। व्हाट डज इट मीन? इसलिए स्वामी विवेकानंद जी बार बार कहा करते थे, हम सुन नहीं रहे हैं लेकिन सुनना पड़ेगा एक दिन, दैट इज मैन मेकिंग एजुकेशन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन। स्वामी विवेकानंद जी बार बार कह के गए हैं, जिस शिक्षा से हम मनुष्य बन सकते हैं, जिस शिक्षा से हम चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, जिस शिक्षा से नेशन बिल्डिंग, देश का निर्माण कर सकते हैं, ऐसी शिक्षा स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे हमारे सब स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, जो भी हम विद्यालय महाविद्यालय, सब जगह इसकी शिक्षा दी जाए, इसकी शिक्षा दी जाए, मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा। तो निर्माण तो होते हैं, हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, जैसे मैंने कहा कुछ देर पहले, क्या सैलरी मिलते हैं हमको, ये है वो है, सब कुछ तो है। अरे यार, ये सुन के खुलिए, स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? मनी डजंट मेक मैन, बट मैन मेक्स मनी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है, इससे ही हमको यही सूचना मिलती है, यही इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या कि अरे पैसा मनुष्य तैयार नहीं कर सकता, मनुष्य ही पैसा कमाता है, तैयार करता है। इसके अर्थ, इसके ये कहने का मतलब ये है कि पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं है, पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं है। आपके पास सब कुछ है, मैंने बहुतों को देखा, आप लोग भी देखे होंगे। क्या है? व्हाट इज द मोस्ट वांटेड थिंग इन ह्यूमन लाइफ? क्या बताइए? सबसे हमारी जीवन में, सबके जीवन में हम क्या चाहते हैं? पैसा, धन, दौलत, ये चाहते हैं, ठीक, लेकिन यही एकमात्र हम चाहते हैं, यही सब चाहते हैं हम। तो ट्राई टू टेल मी व्हाट इज द मोस्ट वांटेड थिंग इन ह्यूमन लाइफ? बताइए, ये बताइए। क्या पैसा है? पैसा चाहिए। तो पैसा होने से सब हो जाएगा, मन की शांति आ जाएगी? बताए, मन की शांति ये सब कोई चाहता है, मन की शांति। कितने यंग, मिडिल एजेड बहुत लोग हमारे पास आते हैं, स्वामी जी मन की शांति नहीं है। क्यों? तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम तो अच्छा कमा रहे हो, आईटी में हो, ये हो वो। अरे महाराज, सब कुछ है लेकिन शांति नहीं। जस्ट आई विल टेल वन इंसिडेंट जो आपको समझ में आ जाएगी। वो क्या है जानते हैं? आई विल नॉट टेक हिज नेम, बट मैं यही कहना चाहूंगा, आप लोग भी सुन लीजिए कान खोल के। अभी ये लगता है क्या बर्बाद किया बाबा जी आया बोल के चला गया। व्हेन यू विल ग्रोन अप, जब तुम बड़े होगे तब तुमको पता चलेगा कि ये सब बात क्या क्या मूल्य है। तब पता चला। भी नहीं था यार, यंग है, सब कुछ है, खून गर्म है एकदम, यार क्या फालतू है सब है दुनिया। पता चलेगा, चलता भी है। हम तो सब जानते हैं, कितने लोग हम लोग के पास आते हैं। तो मैं जो घटना के बारे में जिक्र करता हूँ वही कह के मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा कि आई विल नॉट टेक हिज नेम, बट वन डे ही रैंग मी। ही इज नंबर 1 और नंबर 2 और 3 रिचेस्ट मैन इन इंडिया। 2 साल पहले की घटना है। One day he rang me because Ramakrishna Mission is very well-known organization, the global spiritual organization spreading all over the world. जहाँ से मैं हूँ, रामकृष्ण मिशन के सन्यासी हूँ मैं। उन्होंने हमको बताया, स्वामी जी will you come to my house? Why? बोले हम कुछ दान देना चाहते हैं, क्योंकि हमको तो दान की आवश्यकता होती है, पैसा की आवश्यकता होती है, आश्रम चलाने के लिए, स्कूल कॉलेज, हम भी यूनिवर्सिटी चलाते हैं, आवश्यकता होती है। तो बोले हाँ आऊंगा आपके पास। हम संत हैं गया उनके पास, उन्होंने आदर पूर्वक हमें बैठाया। अरे क्या आलीशान मकान, क्या सब कुछ। तो फिर चाय पिलाया, जो रुपया देने का था वो भी दिया डोनेशन में। लेकिन जो मन खोल के एक बात उन्होंने कही, स्टिल इट इज रिंगिंग इन माय ईयर। क्या उन्होंने बात कही? स्वामी जी,
हमारे पास सब कुछ है, क्या नहीं है दुनिया का? सब कुछ है हमारे पास। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे पास नहीं है, ऑल एमिनिटीज ऑफ लाइफ। लेकिन एक चीज बोलिए, रात को नींद नहीं आती है। क्यों? रात के चैन का नींद हम नहीं सो पाते हैं, हमारे मन में शांति नहीं है। क्यों? इतना रहने पर भी क्यों? बताओ क्यों? उन्होंने कॉन्फेस किया। क्यों? वो यही है कि पैसा सबको आनंद नहीं, किसी को भी आनंद नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है। और आजकल तो बहुत ही मुश्किल है। जिसके पास बहुत पैसा है उसका तो एक बहुत बड़ा डर बना रहता है, क्या? ईडी, सीआईडी और क्या क्या नहीं है, डर बना रहता है। उसको तो रात को सोने के लिए तो दवाई लेनी पड़ती है, कंपोज की गोली लेनी पड़ती है। सो डियर फ्रेंड्स, व्हाट आई मीन टू से दैट रुपया, पैसा, धन दौलत मन की शांति, उससे मन की शांति नहीं आ सकती है। मेरे कहने का मतलब यही है, मेरे कहने का मतलब यही है। और एक घटना बता के मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। यू आर गेटिंग टायर्ड, आई अंडरस्टैंड। आप कब से आया इस यूनिवर्सिटी में? आज 10 बजे आया कि 11 बजे? 9 बजे आएगा। बहुत भूख भी लगी है, बहुत है। अभी आज हाफ डे है, मैंने सुना उनसे, मैडम से। और हाफ डे में भी आपने यहाँ बैठ कर थोड़ा बहुत सुना। एक ही घटना का जिक्र कर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। एक घटना इस प्रकार है, जैसे बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में, बॉम्बे में, ये सब बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, बहुत आलीशान मकान, हाई राइज बिल्डिंग, और उसके नीचे झोपड़पट्टी। वो बहुत बड़ा आलीशान मकान, वो देख रहा है कि एक आदमी, कपल, हस्बैंड एंड वाइफ, वो झोपड़पट्टी में रहता है, लेकिन उसका मुंह में बड़ा हंसमुख, बहुत आनंद में रहता है, काम करता है, शाम को आता है, रसोई वसोई करता है, खाना खाता है, फिर सो जाता है, शाम फिर सुबह उठ के काम में चला जाता है। बट ऑलवेज स्माइलिंग फेस, देयर इज नो एंजाइटी। उनके अंदर, उनके मुंह पर कोई भी एंजाइटी, कोई भी चिंता नहीं। तो उन्होंने अपने को बुलाया। ये घटना है, ये स्टोरी नहीं है। उन्होंने इसको, किसको बुलाया, किसको? उसको बुलाया, अपना प्राइवेट सेक्रेटरी को बुलाया। देखो, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम तो चैन के नींद भी नहीं सकते हैं, या नहीं कर सकते हैं, आराम से बैठ भी नहीं सकते हैं। लेकिन झोपड़पट्टी मेरा एक कपल रहता है, देखो कितना आनंद से रहता है, उसकी कोई चिंता नहीं है। और हमारे तो चिंता में तो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर हो गया है। तो दैट हिज मैनेजर वाज वेरी इंटेलिजेंट। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सर, महाशय, हमें कुछ चीज की आवश्यकता, क्या चाहिए? बोले कुछ करेंसी नोट चाहिए। बोले दे, ले जाओ जितना है। तो उन्हें बोरी में भर के नोट ले गया। कहाँ ले गया? वो नोट ले जाके उसमें बंद करके, बोरी में बंद करके उन्होंने कहाँ रख दिया? वो झोपड़ी के सामने रख दिया। जब वो कपल उस कमरे से निकला तो देखा कि बोरी में कुछ कुछ क्या रखा है। तो उन्होंने खोला और देखा रुपया, इतना रुपया, इतना नोट। बहुत आनंदित हो गया, अरे बाप रे, सो मच ऑफ मनी। उन्होंने सोचा भगवान बहुत कृपालु है, हम इतना रुपया दे दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। थोड़ी देर के लिए तो बहुत ही आनंद हुआ, उछलने लगा। फिर धीरे धीरे उसका चिंता हो गई। क्या चिंता हो गई? कि पुलिस पकड़ेंगे, इतना रुपया कहाँ से आया, कैसे तुमने रुपया कहाँ से उठा के लाया, चोरी करके लाया कि क्या करके लाया? और भी चिंता बढ़ गई, क्योंकि ये रुपया लेके हम करेंगे क्या, इतना रुपया लेके करेंगे क्या? अभी तो कुछ करने का हमारा तो नहीं, हम तो झोपड़पट्टी में रहते हैं। तो ऊपर से जो बहुत जो रईस आदमी देख रहा था, उन्होंने मैनेजर को बुलाया। फिर अच्छा भाई, इसको देखते हैं। कुछ दिन तक उसका मुंह में हंसी नहीं, कुछ भी नहीं, सब बिल्कुल गायब, क्या बात है? बोले सर, आपके पास जो रुपया लेके गया था ना, वो रुपया उनको उस झोपड़पट्टी के सामने, उसके कमरे के सामने में रख दिया। और रुपया नहीं, पैसा ही नहीं, उसका सब कुछ, आनंद, शांति, सब कुछ छीन लिया। वो ऐसा ही बोला है, ऐसा ही है। तो डियर फ्रेंड्स, जो मैं ये मत सोचिए कि मैं कह रहा हूं कि आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ रुपया पैसा नहीं कमाएंगे, एंजॉय लाइफ। बट डियर फ्रेंड्स, सब कुछ की एक सीमा होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गीता में कहा गया है, एवरीथिंग मस्ट बी मॉडरेट,
खाना पीना, उठना बैठना, रुपया पैसा कमाना, सब कुछ परिमित रूप से होना चाहिए. Everything should done in moderate way. If you do not do all these things in moderate way, ज्यादा खाने से क्या होगा? बोलो, तुम तो मोटा है, बोलो. ज्यादा खाने से क्या होगा? बोलो. है? ब्लड शुगर होगी, ब्लड प्रेशर, बीमार पड़ जाओगे. और कम खाने से भी क्या होगा? भूख लगेगी, रोग हो जाएगा. अच्छा, तुम बहुत काम करोगे, ज्यादा काम करने से क्या टेंशन बढ़ जाएगी. और कम काम करोगे तो निकम्मा बन जाओगे. तो मेरे कहने का मतलब है, एवरीथिंग शुड डन इन मॉडरेट वे. पैसा भी कमाना है, वो भी परिमित रूप से कमाओ, नहीं तो ज्यादा कमाओगे, इतना कमाओ. अच्छा बोलो तो हमें क्या चाहिए एक्चुअली? मनुष्य को अच्छी तरह से रहने से क्या चाहिए? जो हम साधारणतः बोलते हैं, कपड़ा, रोटी और मकान. ये तीन चीजें हमें बहुत ही आवश्यक, दिस बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? रुपया के चबाएगा क्या? खाएगा क्या? करेगा? इतने ये होने क्या चाहिए हमें? एक रहने के लिए अच्छा मकान चाहिए, फ्लैट चाहिए, जो भी हो. एक जाने जाने के लिए गाड़ी चाहिए, और एक चाहिए हमें ये क्या नाम, कपड़ा चाहिए. ये तो चीज चाहिए. अरे धोती पहनो, पैंट पहनो, जो भी पहनो. टोपी, हाँ टोपी तो चाहिए, पर हमको तो टोपी चाहिए क्योंकि हम गंजा है ना, हम तो सिर गंजा है. हाँ, और तुम, हमारे तो सिर गंजा है, लेकिन तुम तो गंजा नहीं है, तो भी तो टोपी लगा के बैठो इधर इधर देख रहा हूँ. इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है, अच्छा बैठो, बात करते हैं. तो ये मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें तो यही चाहिए. क्यों होता है, क्या गड़बड़ क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होता है? नीड और ग्रीड दो अलग चीजें हैं. यह है हमारी नीड जो हमने बताया, लेकिन हम क्या करते हैं, नीड को ग्रीड के साथ, लोभ के साथ मिला देते हैं. और तब क्या होता है, तब हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब असुविधा हो जाती है. इसलिए डियर फ्रेंड, जो मानवीय मूल्य है, जो उसकी चर्चा आप जीवन में करो, आपको आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा. अब देखो करके, किसी जीवन में, चाहे इंस्टीट्यूशनल लाइफ और इन द इंडिविजुअल लाइफ, तीन चीज की बड़ी आवश्यकता है. तीन चीज की बड़ी आवश्यकता है, इंडिविजुअल लाइफ और इंस्टीट्यूशनल लाइफ. एक इंस्टीट्यूशन, अमिटी यूनिवर्सिटी इज एन इंस्टीट्यूशन. इंस्टीट्यूशन के लिए भी बहुत ही आवश्यक है. एन इंडिविजुअल लाइफ स्टूडेंट के लिए हो, प्रोफेसर के लिए हो, वो भी बहुत आवश्यक है. व्हाट आर दे? वन इज ट्रांसपेरेंसी, स्वच्छता. स्वच्छता की बहुत आवश्यक है इंडिविजुअल लाइफ में उन्नति करने के लिए, यार कोई भी यूनिवर्सिटी या संस्था को उन्नति करने के लिए. फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी, स्वच्छता. दूसरी है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही. यू मस्ट बी अकाउंटेबल. और तीसरी है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, जिसको हिंदी में कहते हैं. The three things are very much needed for individual life and for institutional life, for sustainable living, sustainable growth, जिसको हम कहते हैं. ये बहुत ही आवश्यक है. ये सब कह रहे तो कहाँ कौन है कुछ नहीं, अरे सब इधर उधर करेगा, लेकिन ज्यादा दिन तक ठीक है. जो शॉर्ट टर्म ग्रोथ होगा, शॉर्ट टर्म लिविंग होगा, जो इधर से उधर, उधर से इधर करता है, घेरा फेरी. लेकिन तुम अगर सस्टेनेबल ग्रोथ चाहते हो, लिविंग चाहते हो, पीसफुल लिविंग चाहते हो, तब तुम्हें ये तीन चीजों की बड़ी आवश्यकता है. दीज आर नथिंग बट द वैल्यूज: ट्रांसपेरेंसी, स्वच्छता, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता. थ्री थिंग्स आर देयर. इसकी बहुत आवश्यकता है हमारे जीवन में. तो जो भी हो, आप लोगों ने कुछ कुछ धैर्य पूर्वक सुना, कुछ कुछ इधर उधर ऐसा कौन चंदमन ऐसा भी किया, मैं सब देखा है. चलो, होता है, इस उम्र में हम लोग भी किया है, ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, हम लोग भी किया है. तो जो भी है, तो ये तो उम्र की ये है. तो हमारे तो ख्याल से तुम्हारी जो उम्र है यहाँ, वो करीब 20 से लेकर 25 तक, क्या मैडम इतना ही होगा ना? हाँ, तो ये थोड़ा बहुत है. ओ 18, तब तो करेगा ही सच को थोड़ा बहुत. नो प्रॉब्लम, उसका कोई बात नहीं है.
वो सब कुछ सब समय सुनने में अच्छा भी नहीं लगता है। एनीवे, तुम समझो और ना समझो, ये भी समझ लो, कान खुल के सुन लो कि कोई अच्छी बातें जब कानों पे जाती है, तुम समझो और नहीं समझो, जो बैठा है उसके लिए भी ये कल्याणकर है। क्या बताइए, आप बताओ। अब तुम, ये भी कल्याणकर है, समझेंगे। अभी नहीं समझा, बाद में समझेगा। बाद में हम लोग तो बहुत उम्र होगी हम लोगों का, अभी समझते, अरे उस समय उन्होंने यही कहा था, उस समय स्कूल में मैंने यही पढ़ाया गया था, क्या इसका देखो कितना सुंदर पढ़ाया गया था, कितने बातें उन्होंने अच्छे की है। तो इसलिए ये सब करना है। तो ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ आया हूँ अमिटी यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट टाइम आई एम विजिटिंग द यूनिट ऑफ अमिटी यूनिवर्सिटी। मैंने 4-5 अमिटी यूनिवर्सिटी में मैंने विजिट किया है। उन्होंने बच्चों को, आई एड्रेस द स्टूडेंट्स एंड समटाइम्स सेमिनार भी हुआ था। मैं सेमिनार में भी उन्होंने अटेंड किया, तो बहुत ही अच्छा लगा। एमिटी इज ए वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, स्प्रेडिंग ऑल ओवर इन इंडिया, एक्सेप्ट, मैडम बता रहे थे, एक्सेप्ट साउथ, वहाँ एमिटी की यूनिट नहीं है, लेकिन इधर तो सभी यूपी में तो बहुत है। तो बहुत अच्छा लगा। फिर आप, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मस्ट गिव यू थैंक्स फॉर पेशेंट शेयरिंग। नमस्कार, धन्यवाद। Thank you, Swamiji, for addressing the students and the faculty. We've got in a very mixed manner with a lot of like the vernacular word that students use for knowledge is gyan. हम बोले या उनके माँ बाप बोले, इनको लगता है ज्यादा ज्ञान मत दो. So the good thing in this particular discourse was Sir Swamiji was able to mix it very well with his own humor to speak to the audience in a way that the audience would be more receptive to the message. So on behalf of the entire family of AISS, I would like to extend a thank you note to Swamiji for taking time out for speaking to our students, for addressing the students on the values that are important and what makes a man, a human being, different from an animal. What are the kind of qualities of humanity, of humanness, which are inherently important for us to be able to live our lives as humans and not as animals. Despite the success of a movie, we still have to be aware of the fact that we're not animals. संवेदनशीलता और जो खूबियां हम में होती हैं एज ह्यूमन बींग्स, जो इंसान को, मानव को दानव से अलग करता है, उसको याद स्वामी जी ने हमें दिलाया, जो कि बहुत जरूरी है हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में, टू नो, टू रिमेंबर एंड टू देन इम्बाइब वट एवर मैसेजेस वी रिसीव. Even consciously, subconsciously, we receive messages from the world around us. If we pay closer attention to them, slowly and surely our lives would change for the better. So dhanyawad Swamiji, dhanyawad, and thank you to the students for staying back without any ulterior motives of attendance or any other thing. So, and to the faculty, and thank you everyone. Thank you. I guess.